So hey everyone, welcome back to the channel. I am Rudra, and in today's video we are going to explore how to integrate SATChain UI with Nexus 15 for building clean, high performance and customizable user interface. So trust me, whether you are a beginner or a working developer, ये सेटअप आपको UI डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा. और हाँ, अगर आपको मॉडर्न टेक टूल्स पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन so in future you don't miss any upcoming content. Okay, so the first question, why even use SATChain UI? The question is that why even use SATChain UI? So let me simplify it. So first thing, it is an open source component library जिसमें मोस्टली सब कुछ रेडीमेड होता है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है. नो नीड टू इंस्टॉल ह्यूज यूआई लाइब्रेरीज मैनुअली. और ये टेलुएंट सी एस एस पे बेस्ड है. सो स्टाइलिंग आपको स्क्रैच से लिखना नहीं पड़ेगा, लाइक मिनिमल एफर्ट देना पड़ेगा इफ़ यू नीड टू ट्विक इट. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट, ये नेक्सस 15 ऐप राउटर के साथ सीमलेस इंटीग्रेट होता है, स्पेशली फॉर मॉडर्न नेक्सस 15 प्रोजेक्ट्स. दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बो. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक्स. सो सबसे पहले हम एक फ्रेश नेक्सस प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, नेक्सस 15 प्रोजेक्ट बनाएंगे. So for that, go to nextjs.org, and this is the home page of Nexus 15. Okay, no Nexus, and just copy this command npx create next app latest. Okay, after that, go to your file manager, go to documents, and create a new folder called demo app. Okay, after that, click on open with other applications. You can open it with VS Code, Visual Studio Code. I am just using Z editor, so let's open it here. Okay, then press Ctrl J and paste the command that we copy from there, like npx create next app at latest. Okay, then your application name. So as we already have an application name, so I just press dot, so that the Nexus project created inside this folder. Okay, so then press dot, and it will start installing some of the in asking some. Now it is asking some questions like, would you like to use TypeScript? Yes. Would you use to like ESLint? No. Then Talent CSS, SRC directory? Yes. App router? Yes. Then Turbo Pack? Yes. Then import LSS, I want to use it, then enter. Okay, so now it is completed. Now wait for some time. Okay, so it will install these packages like next React DOM, then next TypeScript node. Okay, so Talent CSS. So थोड़ा wait कर लो, then setup देखेंगे कैसे actually होता है. Okay, so now it is completed. सो नेक्स्ट हम SATChain इंस्टॉल करेंगे. ओके, सो उससे पहले हम एक काम करते हैं, क्लियर टर्मिनल करते हैं, देन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे मैं PNPM यूज़ कर रहा हूँ, जो पैकेज मैनेजर होता है. अगर आप NPM यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए सिंपल कमांड होगा npm run dev. ओके, npm run dev. ओके, सो मैं PNPM यूज़ कर रहा हूँ, PNPM dev. सो आप अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो भाई. ओके, सो npm run dev भी करते हैं, मेरा शायद थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम है. ओके, देन क्लिक ऑन इन दिस लिंक एंड इट विल स्टार्ट योर डेवलपमेंट सर्वर इन लोकलहोस्ट 3000. ओके, सो ये स्टार्ट हो गया डेवलपमेंट सर्वर हमारा. उसके बाद आपको क्या करना है, SATChain UI जो ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो satchainui.com, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ. SATChain UI. ओके, then click on the first link, then click on get started, then select your framework. Okay, so यहाँ पे Nexus है, Vite है, Laravel, React Router, Astro. so हम Nexus 15 के साथ जाएंगे, so click on Next.js. okay, then यहाँ पे देखो npm yarn bon, then pnpm. okay, so यहाँ पे आप जो भी पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. देखो यहाँ पे मैं npm यूज़ कर रहा हूँ, so I just copy the command, go to my IDE, देन स्टॉप द सर्वर. ओके, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने से पहले अपना सर्वर स्टार्ट करो, क्लोज करो, देन इंस्टॉल करो. क्योंकि मैं भी ये पहले करता था, स्टॉप करता था,
कोई डिफरेंट टैब ओपन करके फिर इंस्टॉल करता था। यहाँ पे मेरा डेवलपमेंट सर्वर रन हो रहा था, तो ये मत करो, ठीक है। सो इनिट करोगे, सो ये क्या करेगा, एक कंपोनेंट डॉट जेसन कुछ कुछ फाइल्स बताएगा। ओके, सो यहाँ पे डिफॉल्ट है वाई। ओके ओके, यू वांट टू प्रोसीड एंड देन इफ एंटर, सो ये वाई के साथ जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ टाइम लेगा, तो एंड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो और एक चीज़ यहाँ पे आपने यहाँ पे टाइप किया npx सेक्शन में एट लेटेस्ट इनिट। ओके, सो अगर यहाँ पे आप एक स्पेस हाइपन -d लगाओगे ना, तो ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। सो यहाँ पे देखो ओके ओके, सो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी क्लियर कर लेते हैं। सो ये इसने क्या किया, एक तो जो कंपोनेंट जेसन बनाया एक फाइल, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, SRC डायरेक्टरी में एक लिप फोल्डर बनाया जहाँ पे टेलविंड मॉड ये सब कुछ फाइल रहता है, और फिर आप फोल्डर बनाया, उसमें ग्लोबल डॉट सीएसएस में कुछ चेंजेस किया, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, तो आपको बाद में बताऊंगा एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ठीक है। थोड़ा डीप में जाएंगे तो लाइक पता चल जाएगा। बस बेसिक के लिए अभी इतना ही याद रखो कि कहाँ कहाँ पे वो चेंजेस हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है कंपोनेंट। ओके, सो देखो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं एक सिंपल कंपोनेंट से, तो हम बटन कंपोनेंट एक यूज़ करेंगे। ओके, सो देखो बटन कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे साइड में जाओगे, क्लिक करोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे प्रीव्यू है, देन यहाँ पे कोड है। ओके, सो मुझे मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे CLI इंस्टॉल करना है। लाइक एक कमांड टाइप करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। सो आपको ये कमांड जस्ट कॉपी कर लेना है। देखो यहाँ पे भी सेम, लाइक npm yarn bourne। ओके, सो मैं npm यूज़ कर रहा हूँ, तो इस कमांड को कॉपी करूँगा, देन गो टू माई IDE, देन पेस्ट द कमांड। ओके, सो आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर एक UI फोल्डर क्रिएट होगा, उसके बाद एक बटन डॉट tsx फाइल होगा। देखो कंपोनेंट्स, देन UI, उसके बाद इसके अंदर एक बटन डॉट tsx फाइल क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे आपको अगर आप टेलविंड से थोड़ा भी लाइक फैमिलियर हो तो आपको पता चल चुका होगा एक्चुअली ये काम कैसे करता है। देखो बटन वेरिएंट्स, यहाँ पे वेरिएंट्स आप चूज़ कर सकते हो, लाइक डिफ़ॉल्ट, डिस्ट्रक्टिव, आउटलाइन। सो इन सब का ना देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो क्लास नेम है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो एक्चुअली वो इससे अच्छा है कि एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं रियल दिखा देता हूँ एक्चुअली काम कैसे करता है। सो इन सबको हटाएंगे, सो जाएंगे पेज डॉट tsx में, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है, इसको हटाते हैं पहले, और यहाँ पे एक लेके सेक्शन एंड go with class name flex, justify center, item center, container mx auto minimum h screen। ओके, सो ये आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है क्या एक्चुअली मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कुछ बेसिक स्टाइल है, तो जैसे कि आपको इजीली समझा सकूँ, ठीक है। तो देखो हमारा कंपोनेंट्स, देन UI, उसके अंदर एक बटन tsx। ओके, इसको हटा देता हूँ। सो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे लिखना है बटन। ओके, देखो यहाँ ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कंपोनेंट्स UI बटन। सो इसको हमें बस यहाँ पे एंटर करना है, और इसको इंपोर्ट कहाँ से करना है, हमें इंपोर्ट करना है इंपोर्ट बटन फ्रॉम कंपोनेंट UI बटन, और यहाँ पे लाइक क्लिक मी, ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगेन सर्वर स्टार्ट करेंगे, लाइक npm run dev, देन क्लिक हियर, तो ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा वेट कर लो। ओके, सो यहाँ पे देखो बटन आ चुका है। तो देखो मैंने कोई भी स्टाइल यहाँ पे नहीं दिया है, सिंपल सा लाइक एक बटन कंपोनेंट दिया है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूँ ना,
BUTTON। ओके, देखो कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, बट इसको अगर मैं थोड़ा भी ट्विक्स करूँ ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो इस बटन का भी ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। ओके, सो यहाँ पे बोला था मैंने वेरिएंट है, तो उसमें आप दे सकते हो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टिव घोष। ओके, डिस्ट्रक्टिव जो है वो उससे क्या होगा, ये रेड हो जाएगा। लाइक आप कोई भी देखो UI UX का कोई रूल होता है, जैसे कि आप कोई बटन डिलीट, लाइक कोई भी चीज़ डिलीट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कौन सा बटन यूज़ करोगे, रेड बटन यूज़ करोगे। तो उसके लिए आप डिस्ट्रक्टिव वेरिएंट यूज़ कर सकते हो। देन आता है एक घोस्ट। ओके, यहाँ पे एक घोस्ट है, यहाँ पे आप होवर करोगे तो ये शो करेगा। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे अगर जाओगे ना लाइक डायरेक्टरी पे, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड, लाइक सेकेंडरी, देन डिस्ट्रक्टिव। ओके, सो यहाँ पे आउटलाइन, लिंक, घोस्ट। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, आइकन भी है यहाँ पे। सो ये चीज़ याद रखना। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि देखो सभी में सेम ही है, लाइक बटन, कैलेंडर, कार्ड। ओके, से ये कार्ड भी बना के दिखा देता हूँ। लाइक कार्ड इंस्टॉल करने से पहले, हाँ और एक चीज़, अगर आप चाहते हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक सिर्फ एक ही कंपोनेंट इंस्टॉल करके दिखाया, वो जो बटन है। आप चाहते हो कि भाई मुझे एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा मैंने इंस्टॉल किया, कौन सा इंस्टॉल नहीं किया। तो मुझे एक लिस्ट दे दो, यहाँ वहाँ से मैं देख लूँगा कि मुझे क्या चाहिए प्रोजेक्ट में, क्या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, npx @ में एट लेटेस्ट ऐड, देन कुछ भी नहीं लिखना है और एंटर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा कि आपको क्या क्या पैकेजेस चाहिए, लाइक क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। देखो यहाँ पे आरो की बटन से आप लाइक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके वेट सेकेंड, ये बहुत फास्ट मूव हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ, लाइक एंटर करूँगा। सो ये लिखा रहा है लाइक नो कंपोनेंट्स। ओके, सो मैंने कभी कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं किया, सॉरी, थोड़ा सा मेरा जो ये हो गया। ओके, सो यहाँ पे मैं ए प्रेस करूँगा ना तो ये टोटल सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद एंटर करूँगा, सो ये जो भी कंपोनेंट्स थे ना सैट चेन UI के अंदर, वो सब इंस्टॉल करेगा अभी। ठीक है, सो वेट करो, इंस्टॉल कर रहा है ये, काफ़ी जल्दी हो जाता है इंस्टॉल, टाइम नहीं लेता। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ओके। सो देखो यहाँ पे जो भी हमने ओके वेट सेकेंड, इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा अभी। आपको जस्ट दिखा देता हूँ एक्चुअली क्या क्या इसने इंस्टॉल किया है और क्या क्या इंस्टॉल नहीं, लाइक क्या क्या इंस्टॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपोनेंट में acodin.asx अलर्ट, सारे जो भी कंपोनेंट्स है, तो वो था एक शॉर्टकट कमांड। ओके, आप चूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ से देखो हमने क्या किया, npx @ में लेटेस्ट ऐड, और उसके बाद हम अगर बटन लिखते तो बटन कंपोनेंट ऐड करता, आकोडिन लिखते तो आकोडिन कंपोनेंट ऐड करता। बट हमें चाहिए था क्या भाई, लिस्ट दे दो, हम चूज़ कर लेंगे लाइक क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक शॉर्टकट था, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर करूँगा टर्मिनल को, देन अगेन स्टार्ट द सर्वर npm run dev। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, एक कार्ड कंपोनेंट बना के दिखाएंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लाइक डेमो है यहाँ पे। सो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे जाके page.tsx में लाइक इसको अगर पेस्ट करूँगा ना page.tsx फाइल में, सो ये मुझे कुछ ओके 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 वेट अ सेकेंड। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ मुझे क्वेश्चंस पूछेगा, बट यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे ना पेज को, okay, so this is an export error, export default
फंक्शन, नॉट ओनली डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ओके ग्रेट। और भाई देख सकते हो ये हमारा फॉर्म कंपोनेंट आ गया, कितना क्लीन है यार, कितना इजी हो गया, मतलब इजीली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और सेम फॉर डैशबोर्ड, यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो ब्लॉक्स में जाके, यहाँ पे ब्राउज ब्लॉक्स करोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड, फिर लाइक ढेरों चीज़ है यहाँ पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। देन थीम्स, कलर्स, ये वीडियो लगेगा और एक वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए शायद। ओके सो और एक चीज़ मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो के एंड तक रहना, मैं कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जो अपने प्रोजेक्ट्स में मैं खुद यूज़ करता हूँ। देखो एक तो हो गया SATSMUI, वो तो लाइक यूज़ करता ही हूँ। उसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट है जैसे कि ओरिजिन UI। ओके सो इसमें क्या होता है लाइक आप ये भी एक ओपन सोर्स कॉमन लाइब्रेरी है, तो SATSMUI पे ही बेस्ड है, SATSMUI एंड टेलियन पे। तो ये भी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना उनका जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक वर्जन देता है, तो यहाँ से भी आप कॉपी करके देखो, यहाँ से व्यू कोड करोगे तो आप कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक हो गया। देन अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे SATSMUI ब्लॉक्स, तो और एक ये आएगा लाइक ये चीज़, ये कुछ कुछ फ्री देता है और कुछ पेड देता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी फ्री होता है ना वो काफ़ी होता है, लाइक अगर आप एक लैंडिंग पेज या फिर कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक टेलकिट उसके नाम है, लाइक ये भी एक अच्छा लाइब्रेरी है, यहाँ पे भी बहुत सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर और एक मैं अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और तो बस इतना ही था आज के लिए। सेटअप सिंपल था, राइट। अब आप ऐड कर सकते हो और कोई भी कंपोनेंट्स वही सेटअप फॉलो करके, ठीक है। अगले वीडियो में बनाएंगे एक रेस्पॉन्सिव डैशबोर्ड UI यूजिंग दिस components, so full practical guide. So if that sounds exciting, make sure to like this video and subscribe to the channel, and thank you.